Share screen at the bottom and allow multiple views. Okay, thank you. Ma'am, please check it now. Yes. Thank you, ma'am. I hope my presentation is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes. So let us, a very good morning to everyone here. I just at the beginning to ask you if you haven't gone and I'll append with you. First, my session you will have to take certain notes during the lecture so that you will be able to understand your personality. The topic here is you have to know your personality and through this slides which is crucial you can understand that each type has some you can jot down those details and at the end of the session you will be able to understand more. For that, we'll need a notepad. Let us first understand what does personality mean by. It's a combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. There are a lot of things that come under personality. You can't that defines your personality. There are a lot of qualities and distinctive characters, traits. A characteristic way उनका of काम हम thinking, करें ऐसा Excuse me, ma'am. बाकी तो सब किसके लिए 1 यार minute, ma'am, please. है ही होती है Hello. yes, आप क्या आप और Shraddha, आपका ma'am. मॉम राइट Ma'am, I have to say something to students. सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप अपने म्यूट बटन्स ऑफ कर दें. जिनके म्यूट बटन्स ऑन है, किरण, कल्पनी, बोरकर, नुपुर, आप सभी से रिक्वेस्ट so I will mute all in that case. रक्षा बोरकर, If you have no issue, I'm सभी अपने माइक बटन ऑफ करेंगे. ma'am, as I'm the host, I have mute all. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You can continue now. Okay. Yes. Yes. So we have seen what is basically a personality, a characteristic way of thinking, feeling, and behaving. So there are three things when you consider a personality. तीन चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है. जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं किसी चीज को, और ये दोनों चीजों के बेसिस पे हम बिहेव करते हैं. ठीक है, हमारी सोच पे, हमारी फीलिंग्स पे हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है, और ये तीनों चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है. So let us see what are the different types of personality, and you have to write down few points under each personality trait. आपको खुद का एनालिसिस करना है. ये लेक्चर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप आपकी पर्सनालिटी स्टडी कर सकते हैं. So I will introduce to you to the 4 kinds of personality types. I'm going to discuss all these personality in detail. First, let us see type A, जो होते हैं द डायरेक्टर. ये
एक तरीके की पर्सनालिटी होती है जो काफी गोल ओरिएंटेड होते हैं. दे आर क्वाइट फोकस्ड इन देयर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग. दे आर क्वाइट क्लियर व्हाट दे हैव टू डू एंड दे आर क्वाइट फोकस्ड. जब फोकस होते हैं आप, तब आप गोल ओरिएंटेड भी होते हैं. सो क्लैरिटी होती है एक तरीके की कि हमको आगे क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल में भी अगर आप कुछ करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ पसंद नहीं है. तो जिस चीज़ की क्लैरिटी होती है उसी चीज़ के सामने हम अपना गोल रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग. बिकॉज आपको थोड़ी सी हर चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा प्लानिंग करते हो, क्लैरिटी रखते हो, उसकी वजह से आपका जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है. इफ यू टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ बिग बिजनेसमैन, आप ये देखोगे हमेशा कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं आज तक, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बड़े हो गए हैं या फिर दे हैव बीन मिलियनियर्स. दे हैव रिस्क टेकिंग फैक्टर उनमें जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. ओके. सो दोज हु हैव गॉट गुड गोल्स, दे आर क्वाइट गोल ओरिएंटेड. उनमें ये भी चीज होती है कि वो रिस्क टेकिंग भी होते हैं एंड दे कैन, बिकॉज they have proper planning towards their goal, and sometimes they are risk taking also. They can work under stress. They can work very good under stress. अदरवाइज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस होता है तब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. बट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स वेयर पीपल हैव worked better in stress. You can go and look at sports person. उनमें जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं. सो इस तरीके के जो लोग होते हैं, आप में से अगर कोई टाइप ए है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, इनमें तीन में से दो चीजें मुझ में है, तो मैं टाइप ए की पर्सनालिटी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ. सो दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर. नाउ लेट अस गो टू टाइप बी, द सोशलाइजर. जैसे यहाँ कहा गया है सोशलाइजर. सोशलाइजर जो होता है जो सोशलाइज करता है, जो लोगों से बात करता है, जिसको जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है. a person who likes to achieve success through relationship. ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ डिस्कस करना, आइडियाज लेना. ऐसे अगर किसी व्यक्ति को पसंद है लोगों के साथ मिल के काम करने में, दैट पर्सन इज द सोशलाइजर. ही इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड. Now, this relationship is not only limited to professional, but because he is a socializer, और उसको personal relationship अच्छे से रखने में भी बहुत अच्छा लगता है. So everywhere that person is basically, उसको जो भी अचीव करना है उसके लाइफ में, he will always think that I can achieve that in my life through getting these good relationships in my life. बिकॉज ही इज अ सोशलाइजर, ही इज आउटगोइंग. वो एक एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान होता है जो कॉन्फिडेंट होता है लोगों के साथ बात करने में, कम्युनिकेशन करने में. सो ही इज अ वेरी आउटगोइंग पर्सन. एंड ऑफ कोर्स विदाउट एंथुजियाज्म यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू पीपल. सो इफ यू आर वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक हो आप, और आप बहुत आपको पसंद है बात करना लोगों से, तो आप see everything you can achieve through these different kinds of personalities. So what kind of personality you are, you can identify today with these kinds of slides. So second is, जैसे हमने देखा, second है socializer. थर्ड है टाइप सी, और वो है द थिंकर. detail oriented. When you are, see, you are only focused on your job, your work. जैसे अर्जुन का हमने देखा है, ही वॉज डिटेल ओरिएंटेड पर्सन, जहां उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है. सो दैट पर्सन हु वॉट एवर ही विल वर्क, इधर ही विल बी इन प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, कहीं पे भी वो इंसान हो, पर वो हर जगह अपना काम और अपना फोकस देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको प्रोफेशनल लाइफ में कोई काम दिया गया, तो वो बराबर उस काम को लेके ही
वर्क करेगा, या फिर ही विल बी वेरी मच inclined to his work. Because he is inclined to his work, he will be lot more logical. मैं इसको किस तरीके से करूँ, और he will have a very proper planning toward achieving this goal. In every small detail he will try to do that. For example, आप में से कोई स्टडीज के बारे में, अगर आप एग्जाम आ रही है स्टडीज के बारे में सोचते हो, तो बहुत डिटेल में जो टाइम टेबल बनाते हैं, मिनट टू मिनट टाइम टेबल बनाते हैं, टॉपिक टू टॉपिक टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो आप एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो। एंड लॉजिकली आप सोचते हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, सो योर थिंकिंग और आपकी जो फीलिंग्स भी लॉजिकल ही अटैच हो जाती है। एंड यू आर प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने कहा प्लानिंग, बिकॉज यू आर डिटेल ओरिएंटेड, आप प्लानिंग में ज्यादा विश्वास करते हो। अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, फैमिली ट्रिप अगर आप जा रहे हो, यू कैन नॉट गो रैंडमली एंड स्टार्ट योर जर्नी एंड देन कहीं पे भी आप रुक जाओ होटल में, आप विदाउट बुकिंग यू आर गोइंग, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप हर एक चीज आपकी लाइफ में प्लान करके ही चलोगे लॉजिकली। यू विल थिंक दैट हाउ मच मनी डू आई हैव, उस हिसाब से ही मैं अपनी ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना वक्त है, मेरी एज क्या है, मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल एक्चुअली वर्क लॉजिकली, and because you are working logically, you will prepare it properly, and then this can be said that you are a very detailed oriented person. So you can be a combination of one or two, I would say, not three, but आप एक टाइप ए एंड टाइप बी की टाइप सी के कॉम्बिनेशन हो सकते हो, जहाँ पे आप गोल ओरिएंटेड हो और उसकी वजह से आप डिटेल ओरिएंटेड हो, और इसीलिए आप लॉजिकली आपका प्लान कर रहे हो। सो यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू personality types. Here we can see. And the last one is type D, the supporter, who is task oriented. Now task oriented means, for example, the director who is goal oriented, वो एक लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होती है। तो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये प्रोग्राम आज जो कंडक्ट हुआ है वो स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से हुआ है। तो जहाँ ये दो लीडर्स आपके सामने हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो हो गए डायरेक्टर। दीज आर डायरेक्टर पर्सनालिटीज, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है। और जो यहाँ पे ऑडियंस बन के आए हैं, तो वो एक तरीके से सपोर्टर पर्सनालिटी में आ सकते हैं, जो कहा गया है कि ये काम आपको करना है तो आप वो काम कर रहे हो। सो जो ऑडियंस होती है या फिर जो सपोर्टिंग लोग हमको लगते हैं, वो एक तरीके के टास्क जो जिनको दिया जाता है वो अच्छी तरीके से वो टास्क कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी पीपल हु से दैट आप मुझे सिर्फ काम बताओ, मैं वो काम अच्छे से कर लेता हूँ। आप मुझे सोचने के लिए मत दीजिए कि क्या करना चाहिए, आप बताओ मैं वो कर लूंगा अच्छे से। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वो टास्क अच्छे से कर लूंगी। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी इज टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी। ये से वेरी स्टेबलाइजिंग होती है हर चीज को। आपने देखा होगा कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं, यू नो दिस कैटेगरी ऑफ स्लो लर्नर्स, है ना, जो एकेडमिकली या फिर इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा यू कैन से आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वो दे आर लेस इन देयर इंटेलेक्चुअल एकेडमिक क्वेश्चन। दीज पीपल आर वेरी गुड सपोर्टर्स। आपने उनको जो भी काम दिया वो बराबर वो याद रखे, वो टास्क कंप्लीट करके ही आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज बैठी है कि मुझे बस आपने एक काम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इसके 10 जेरोक्स निकालने हैं, तो एक सपोर्टर उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, शायद जितना लीडर ना कर पाए। तो जितना इम्पोर्टेंस एक डायरेक्टर का है, जितना इम्पोर्टेंट सोशलाइजर है, जितना इम्पोर्टेंट थिंकर है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक ये सपोर्टर पर्सनालिटी भी होती है, जो बहुत कॉशियस होती है।
कभी गलती ना हो। ये सपोर्टर्स जो पर्सनालिटीज होती है उनके साथ कभी कोई गलतियां नहीं होती ज्यादा। आप देखो दे आर वेरी कॉशियस, जो भी हमको दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो एंड यू आर द मेन कुक, तो हु आर द सपोर्टर्स? द सपोर्टर्स आर द assistants. They will cut the vegetables, they will keep all the spices ready, they will keep all the pre plan ready for the main chef to come. अगर गलती से समझ लीजिए असिस्टेंट शेफ ने शक्कर की जगह नमक रख दिया, so it will be a very big blunder on the part of the main chef. So these supporters are very cautious, धीरे धीरे काम करते हैं, अपनी पेस पे काम करते हैं, बट दे आर वेरी कॉशियस अबाउट देयर वर्क. सो अभी तक आपको शायद थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी कि आप में से लोग ये किस टाइप के पर्सनालिटी है. सो कैन यू प्लीज ऑल ऑफ यू ऑन एन आई मीन जस्ट ये 4 जो मैंने अभी डिस्कस किए उसके बेसिस पे क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी हो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा ये जानने में कि आप सुन रहे हैं. तो टाइप ए आप आपके नाम के सामने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी अगर चैट बॉक्स में आप डालेंगे तो आई विल जस्ट सी. मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं I'll explain. Those who are present here, can you please put it in the chat box which kind of personality you think you are on the basis of these personality types that I have discussed. Okay, so every personality, thank you Achal for replying. Yes, Achal is saying she is D, Nupur is saying she is C, Hina is saying she is B. Okay, come on, be quick. C, B, A. So every personality is important, and role of every personality is important when you work together. So अगर हर कोई लीडर बन जाए तो फिर कौन किसकी सुनेगा. So इसीलिए मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि कोई पर्सनालिटी अगर डी है, सी है तो या फिर बी है या फिर ए है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है. It's a teamwork. We live in society, we live in community. So every person, every personality is a complement to each other. Thank you students for replying me. I will go next to my next. Yes. Well, let us understand type A in detail. उनकी स्ट्रेंथ क्या. सी कभी भी हमको अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, कोई भी चीज की हम अगर बात करते हैं तो इट इज लाइक ऑलवेज क्रिएटिंग अ बैलेंस. सो कभी कोई चीज ज्यादा हो जाए या फिर कभी कोई चीज कम हो जाए, सो उसका जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं चला जाता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच टाइप, एंड देन वी कैन सी हाउ वी कैन क्रिएट द बैलेंस टू गेट a very balanced kind of personality. Okay, so what are the strengths of type A? They take charge. जैसे मैंने कहा ये leaders होते हैं. They take charge and they are fast paced. They can work quickly. बहुत जल्दी तरीके से काम कर सकते हैं quickly अपना because they are quite goal oriented. तो उनके काम करने का जो तरीका है वो काफी फास्ट होता है. दे आर एम्बिशियस, दे नो व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, दे नो देयर एम्बिशंस आर क्वाइट क्लियर. दैट वर्क्स वेल इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे डोंट नीड, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट. उनका विल पावर अच्छा होता है, वो सेल्फ अवेयर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में, तो दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. तो बहुत बार ऐसे होता है कि उनको जरूरत नहीं होती है किसी की, वो अकेले भी कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे कैन टेक चार्ज, दे आर एम्बिशियस और इंडिपेंडेंटली काम करने की वजह से दे कैन एम्ब्रेस चेंज. कभी भी कोई भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलेज का प्रोग्राम समझिए कल आप कंडक्ट कर रहे हो और सडनली कुछ हो गया, आपको आज करना पड़ा, तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज को बहुत जल्दी तरीके से अडॉप्ट करना, ये उनको बहुत अच्छे से आता है. वीकनेसेस क्या होता है आगे लेट अस सी. अगर ये थोड़ा सा ये सारी स्ट्रेंथ जो है ये अगर ओवर हो गई,
तो क्या हो सकता है, वो स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं कि मेरा ही मानना है, मैं ही सही हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस ओवर लीडरशिप क्वालिटीज, उनमें एक स्टबर्ननेस आता है कि आई एम द लीडर एंड यू हैव टू लिसन टू मी। And because they are very ambitious, they are workaholic, they only think about work all the time. It may happen. So that is what I am trying to tell. Balancing is important. So workaholic होना भी अच्छी बात नहीं है अगर वो हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहे. So that is also not a balanced life. They are very impatient. जल्दी जल्दी अगर काम करना है तो थोड़ा सा impulsive, impatient भी हो सकते हैं. एंड अगर उनका कोई सुन नहीं रहा है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दे शुड लिसन टू मी, मेरा सुनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनमें एंगर, टफनेस और ये सारी चीजें आ सकती है. तो अगर आपको टाइप ए हो आप, और आपको टाइप ए एक बैलेंस्ड टाइप ए अगर आपको बनना है, तो आपको मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. सो लेट अस गो टू टाइप बी. टाइप बी के कौन से स्ट्रेंथ्स हैं? हमने देखा सोशलाइजर है टाइप बी. सो एंथुजियाज्म, फन लविंग, मजाक मस्ती सबके साथ करना, सबके साथ बातें करना, उनके साथ एक दूसरे कम्युनिकेट करना, परस्यू करना. परस्यूजिवनेस मीन्स अगर छोड़ नहीं देते कोई चीज, पीछे पड़ते हैं बराबर. वो अगर ये चीज करनी है तो वो ठान के करेंगे कि हाँ मुझे उस चीज के पीछे जाना है और मैं करके रहूंगी. इजीली लाइक्ड बाय मोस्ट पीपल. यस, शांत लोग बहुत लोगों को पसंद नहीं है जो बातें करते हैं. देखिए आपके घर कोई आया है और अगर आप उठ के कोई दूसरे रूम में चले जाओ, आपके कॉलेज में कोई आया है, कोई कुछ पूछ रहा है आपको, and you just go without giving them any glance or reply, how will you feel, how will they feel? So people always like that आप उनको respond करो, आप उनसे बात करो. So that is why these people जो socializer होते हैं, वो जो बातें करते हैं लोगों से, अच्छे communicate कर पाते हैं, they are very popular. उनको they are very quite popular. And friendliness, they have got this sensitive and humility side to their personality. बट अगर ये ज्यादा हो गया तो बिकॉज दे आर लाइक्ड बाय पीपल, क्या होता है कि उनको अटेंशन सीकिंग पसंद है. हमेशा उनकी लोग तारीफ करेंगे, तो वो उनको तारीफ सुनने की बहुत आदत हो जाती है. एंड वंस उनको तारीफ सुनने की आदत हो गई तो दे आर टू सेल्फ इन्वॉल्व. तो छोटे बच्चों के साथ ये बहुत बार होता है कि जब छोटे बच्चे दे आर कंसिस्टेंटली विनिंग सम कॉम्पिटिशंस, और अगर 4-5 कॉम्पिटिशन जीत ली और अगर 6वीं कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाए तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है दैट आई एम द विनर एंड नाउ आई हैव लॉस्ट, तो अभी मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा. तो देयर समवेयर दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर दे आर नॉट गेटिंग अटेंशन. इनिशियली उनको अटेंशन मिला और बाद में नहीं मिल रहा है. सो दे आर टू सेल्फ इन्वॉल्व, दे थिंक अबाउट देमसेल्फ, may try to do too much at once. ओवर इन्वॉल्व होके ओवर सेंसिटिविटी भी अच्छी नहीं होती है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है. आप बात कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ये लेक्चर आज 1 घंटे का है, अगर मैं 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का लेक्चर लूँ तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. I mean, because I am good in talking, because I am good in communicating, because I am good in guiding students, it doesn't mean that I should overdo things. So I have my limitations as well. Impatient होना है and sometimes unrealistic, है ना. ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और ड्रीम वर्ल्ड की बात करते हैं, फेरी टेल बात करते हैं, रियलिटी से थोड़ा सा दूर होके बात करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लॉट ऑफ प्लान्स आर देयर, है ना. ओनली टॉकिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग. सो अगर सोशलाइजिंग में या फिर इस बात करने में थोड़ा सा, there are many personalities you can come across, you have come across in your life कि वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते. So वो जो पार्ट है उनके पर्सनालिटी का, वो थोड़ा सा ओवरडू हो जाता है. एंड ट्रबल बीइंग अलोन, ऑफ कोर्स द वर्ड सोशलाइजिंग मीन्स दे डोंट लाइक टू बी अलोन. जैसे मैंने कहा, they want attention all the time. So if new people come and they are absolutely ignored by
the old friends, they don't like it. They don't like to be alone. They want to be with people all the time. So, but then sometimes it is advised that you should be sitting alone, spending time with yourself. That is also important. All the time, people cannot give you attention. So, you need to understand these things also in order to keep the balance. Let us see type C. Yes. So, what is type C? It is detail oriented, and because they are quite a planner, they always work in accuracy. They are very punctual. I think आर्मी मैन, एयरफोर्स, नेवी, इस तरीके के जो लोग हैं वो शायद टाइप सी से हो, क्योंकि उनको डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, प्लानिंग ये बहुत पसंद है। तो उस तरीके से एक प्रॉपर पंक्चुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि डिटेल ओरिएंटेड है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर जब आप ध्यान देते हो तब आप बहुत क्रिएटिव होते हो। एक क्रिएटिव पर्सन क्रिएटिव क्यों होता है? बिकॉज वो हर एक चीज की तरफ बहुत बारीकी से ध्यान देता है। जैसे मैं अगर मैं कल बारिश आ रही थी तो मैं अपने बालकनी में बैठी हूँ एंड आई एम वॉचिंग रेन्स एंड आई एम एंजॉइंग द साउंड ऑफ रेन, द स्मेल ऑफ द ग्राउंड, अर्थ, and I'm watching those green leaves. Let us sit there, watch smaller details. I can, after some time, maybe I can sing, I can write a poetry, I will be able to create a painting, anything, because I've observed those things. जब आप ऑब्जर्व करते हो ये सारी चीजें, तब आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, तो आप एक्यूरेसी में ज्यादा बिलीव करते हो, छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो। एंड डिपेंडेबल, बिकॉज ऑफ कोर्स you cannot accomplish, if you want to do something, you cannot accomplish alone. You need, see, this is the difference between type A and type C, where type A feels that I don't want anyone's uh, support. I am the leader and I am quite confident that I can do it alone. But here somewhere type C feels that if I want to accomplish something, मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो मुझे किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। So this type feels that to achieve something he is dependable on people. जैसे मैंने कहा क्रिएटिव है तो इमेजिनेटिव है, इमेजिन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट डिटेल, इंडिपेंडेंट इसलिए है जैसे बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग एक्यूरेसी है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी होते हैं। दे आर नॉट लाइक socializer, those who feel that they want people all the time with them. At times they are independent also, but not totally independent as compared to type A. And detail तो हमने देखा ही है इस एस्पेक्ट को। एंड अगर ये ज्यादा हो गया ये सारी चीजें, तो दे वरी अबाउट प्रोग्रेस, क्योंकि अगर उनके प्लानिंग के हिसाब से वो चीजें नहीं हुई, सो दे कैन गेट इनटू एंजाइटी एंड स्ट्रेस की मैंने समझ लीजिए एग्जाम के लिए ये पढ़ा था, पर अगर पढ़ी हुई चीजें नहीं आई, कुछ और आया है, सो दे कैन एब्सोल्युटली वरी अबाउट कि मैंने तो प्लानिंग की थी पर प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट even if you plan things, something different happens. We have planned so many things for the year 2020 and 21, but nothing happened because of lockdown and pandemic. आप देख सकते हो कि जितनी भी प्लानिंग हर किसी ने यहाँ पे की थी वो नहीं हो पाई है। So it's not possible कि हर वक्त आप जो सोचो उस तरीके से प्लानिंग होगा और उसी तरीके से चीजें होगी। तो थोड़ा सा वरीसम हो जाते हैं, कैन अपीयर अनसोशल, बिकॉज व्हेन यू आर टू मच फोकस्ड, है ना, तो आप थोड़ा सा सोशल कम हो जाते हो, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योर वर्क, यू डोंट लाइक टू स्पेंड टाइम विद पीपल। एंड हो जाता है ऐसे कभी कभी कि यू फील दैट स्पेंडिंग टाइम विद पीपल एंड गेटिंग सोशलाइजिंग विल वेस्ट योर टाइम। इसीलिए when you are focused somewhere you are becoming unsocial. Critical behavior, because you feel that you are
एग्जाम्पल जैसे मैं फिर से दूंगी कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छे से प्लानिंग करते हो, तो इस तरीके से जब व्हेन यू आर गुड ना, समटाइम्स इट बिकम्स दैट you label others as bad. The problem with good people is, good in the sense, the people who are very well planned and very systematically, they always feel that others are bad. तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल बिहेवियर उनके पर्सनालिटी में आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कैन हैव योर ओन प्लानिंग, यू कैन हैव योर ओन पर्सनालिटी, you can manage your personality, at the same time you can respect others also. So this is how you can create the balance. Likes to do things their own way. Again जैसे मैंने कहा कि क्योंकि खुद प्लानिंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी और का नहीं सुनना है. I want to, so there can be a clash between type A and type C here. So even type C can feel that I don't want to listen to the leader because I am equally competent. But then he is not the leader. Leader is only one. So somewhere, if he understands that there is one leader and I need to follow him, I think things can become easy for everyone. Detached behavior, जैसे unsocial है, उसी को हम detached behavior बोल सकते हैं, क्योंकि आप किसी और के बारे में बुरा सोचते हो, आपको लोगों से मिलना नहीं है बिकॉज आपके पास वक्त नहीं है, आप काफी फोकस्ड हो आपके टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से डिटैच होते जाते हो. एंड कहीं ना कहीं यू कैन गो बैक टू, आप में शायद हर एक टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए. थोड़ा सोशलाइज कर सकते हैं, आप गोल ओरिएंटेड रह सकते हैं, एट द सेम टाइम आप फोकस्ड ओरिएंटेड रह सकते हैं. तो हर एक पर्सनालिटी का बैलेंस आप खुद में क्रिएट कर सकते हैं. लास्ट इज टाइप डी, लो की, दे आर वेरी हम्बल. टाइप डी जो है वो काफी हम्बल होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट. जैसे कोई आई रिमेम्बर आई हैड participated in dance competition in my college and full stage decoration हमारे supporters ने किया था, our friends, and we those who were there were only 8 performers and the whole class, other remaining class has supported us for the whole event. And so because of that we could uh, get the first we were the first winners. So it was a teamwork. These people supported us for the stage decoration, for the theme, for everything, all the miscellaneous things. So for winning trophy किसको मिली? सिर्फ हम 8 लोगों को वो ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स मिले, सपोर्टर्स को नहीं मिले, पर उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है. दे आर वेरी लो की, दे डोंट एक्सपेक्ट मच, दे ऑलवेज फील दैट they are very happy with being supporters. They are very caring, they are very sincere, they don't expect much from people and they are happy being supporting others. Expectations बहुत ज्यादा नहीं होती है उनकी. Compassionate, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है जो सपोर्टर्स में होती है, और हम अगर इसमें से 2-3 क्वालिटीज ले सकते हैं तो आई थिंक even if we are leaders, we can be caring, sincere and compassionate. It does not mean कि हम लीडर है तो हम caring नहीं होना चाहिए, sincere नहीं होना चाहिए, compassionate towards people नहीं होना चाहिए. जो एक किंग होता है ना, एक अच्छा किंग वही होता है जो एक अच्छा लीडर होता है. अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों के बारे में सोचता है, उसकी जनता के बारे में सोचता है, उसके किंगडम के बारे में सोचता है. तो he is a very balanced king, he is a balanced leader, he is very stable in understanding the problems of people. So and he is very quiet, fair and equitable. So उसमें वो superiority inferiority complex नहीं होती है. जो एक सपोर्टर होता है वो हर किसी को इक्वल मानता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पर्सनालिटी टाइप, अ पर्सन हु इज डी. ओके, बट देन अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया पर्सनालिटी में, तो यू आर वेरी शाय, आपको सिर्फ सपोर्ट करना पसंद है, लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं यू कैन, आप पीछे रह सकते हो लाइफ में, बिकॉज आप हमेशा आपने सपोर्ट किया है. क्या करोगे अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई लाइफ में, अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़े, तो आप यही बोलते रहोगे कि नहीं, जब तक मुझे कोई बताता नहीं है कि
ये करना है तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। नो, यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट इजीली यूज्ड बाय अदर्स। यू कैन बी यू बिकॉज एक तरीके से एक वीकनेस में कन्वर्ट हो सकती है ये चीज, अगर आप में थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं लाओगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, सिर्फ सपोर्टिंग पर्सनालिटी आप में अगर ज्यादा है, तो आप कोई इजीली आपको यूज कर सकता है, आपका मिसयूज कर, यूज तो मैं नहीं कहूँगा, मिसयूज कर सकता है आपको। सो आपको कहीं ना कहीं टाइप ए से कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, टाइप सी से कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, और बी से भी कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आपके जो स्ट्रेंथ है उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। गोइंग अलोंग व्हेन दे डोंट अग्री, गेटिंग हर्ट फीलिंग्स बिकॉज आपको कोई यूज करेगा तो बहुत सेंसिटिव, सी ओवर केयरिंग, ओवर सिंसियर, ओवर कंपैशनेट होना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट विल हर्ट योर फीलिंग्स। तो क्या देयर इज नो यूज, अगर आप हर बार हर्ट हो रहे हो, हर बार हर्ट हो रहे हो, तो आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको कहीं ना कहीं उससे बाहर आके आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी इस तरीके से कि आप एक बहुत अच्छे सपोर्टर हो, जो अगर वक्त हो तो आप लीडर भी बन सकते हो, अगर वक्त हो तो आप एक डायरेक्टर बन सकते हो, एक सपोर्टर बन सकते हो, सोशलाइजर बन सकते हो, हर चीज आप बन सकते हो। रेजिस्टेंट शायद मैंने कहा ही आपको कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, पीछे 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 रहने की आदत होती है। सो वी सी हम क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को जब लोग बहुत फोटो खींचते हैं, आगे आगे जाके फोटो खींचते हैं, तो वी क्रिटिसाइज कि नहीं मुझे फोटो खींचना पसंद नहीं है, मैं तो पीछे ही रहूंगी, फोटो नहीं आए तो भी चलेगा। सो दैट दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। इफ यू हैव डन वर्क, आपने सपोर्ट किया है, तो आप खुद के रिकॉग्नाइज खुद को रिकॉग्नाइज कीजिए। जब आप खुद को रिकॉग्नाइज करेंगे, खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। आज का जमाना 2021 ऐसा है कि अगर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे आप क्या कर रहे हो, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ, come forward and tell people that what you are, if you have supported, tell them that I have supported this cause, I have walkathon है, वॉकेथॉन होता है जहाँ पे आपको क्या करना है, पैदल चलना है और कोई ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई पर्टिकुलर इस चीज को आपको सपोर्ट करना है, तो आप सपोर्ट ही कर रहे हो, आप सिर्फ पैदल चल रहे हो। सो यू आर सपोर्टिंग दैट कॉज, एनी सोशल कॉज। So what wrong is that by telling them that yes, I have supported to this cause. So please come forward and tell that yes, even if you are the supporter, but you have done the job of supporting. That is also very important. And resistant to change. अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप सपोर्टर्स हो तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। जैसे कुकून होता है ना, कुकून विल बिकम अ बटरफ्लाई। सो यू आर अ कुकून, बी अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कितना नाजुक होता है, तो आपको एक बटरफ्लाई बनना है कि उड़ना भी है, सुंदर भी दिखना है, आपका प्रेजेंस भी फील करवाना है, आपको बहुत आप सॉफ्ट भी रहना है, आपको अगर आपको टाइम आए तो आपको उस तरीके से कॉशियस भी रहना है। सो यू आर इन अ cocoon now, caterpillar, and just come out of your cocoon and become a butterfly. Don't resist change. Change is unavoidable. Change is permanent. आपको कहीं ना कहीं लाइफ में चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आज आज हमारा लेक्चर इस टॉपिक पे हुआ है, तो आज हमको चेंज होना है, आज से हमको चेंज होना है। जो ऐसा चेंज करना है हमारी पर्सनालिटी में, जो चीजें हमें वीकनेसेस है उनको हमको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करनी है। ये कौन सी चीजें, मैं बहुत क्विकली इन टॉपिक्स पे आती हूँ एंड आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट एक्चुअली गवर्न आवर पर्सनालिटी। तो क्यों अगर कोई टाइप ए है, बी है, सी है, डी है, तो वो क्यों है? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल दें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। नो,
आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये कोई तरीके की पर्सनालिटी है तो वो क्यों होती है। ये टॉपिक जानना इसीलिए जरूरी है बिकॉज once you understand people, it will become for you to understand yourself and in return understand others to get success in your life. So what are the three things? Biological factors, हमको पता है genetically बहुत बार हम बोलते हैं कि इसका मेरा स्वभाव मेरी मम्मी जैसा है, मेरा स्वभाव मेरे पापा जैसा है, तो वी लिंक दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दीज आर पर्सनालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल इश्यूज। सो मैं बिहेवियरल फैक्टर्स की ही बात कर रही हूँ। जेनेटिकली भी जैसे फिजिकल बॉडी से तो होते ही हैं सिमिलैरिटीज, बट बिहेवियरल इश्यूज भी जेनेटिकली कभी कभी होते हैं। सो दैट कैन भी, जैसे मैंने कहा कि मैं इस बारे में आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक माई मदर, और आई एम वेरी इंट्रोवर्ट लाइक माई फादर। सो ये जेनेटिकली भी होता है हमारे साथ, हेरिडिटरी फैक्टर्स इसमें आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस तो देखा ही है, जिस तरीके से हम हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, नॉट ओनली द कलर ऑफ द स्किन और द शेप ऑफ द नोज, यू कैन ऑल्सो लाइक अगर ऐसे स्टूप करके चल रहे हैं तो हमारा भी बॉडी उसी तरीके से हो रहा है। हम हमारी बॉडी शेप को कहीं ना कहीं एक अगर उसमें थोड़ी कमी है तो उसको हम एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी पर्सनालिटी को, चाहे वो फिजिकल हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली में बहुत कोई बहुत दुबले ही होते हैं लोग या फिर मोटे ही होते हैं तो उनके बच्चे भी दुबले या मोटे होते हैं। सो पर इस चीज को भी हम चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान देके, तो वी कैन बी हेल्थी। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। व्हाई शुड वी गो एंड से कि नहीं मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं तो मैं ऐसा हूँ। अगर हमारी फैमिली में ये चलता आ रहा है तो द थिंग्स दैट यू कैन चेंज, यू कैन डेफिनेटली अपने हेल्दी तरीके से जो चेंज हो सकती है वो चेंज करनी चाहिए। फिजिक एंड रेट ऑफ मैच्योरेशन, जैसे मैंने कहा फिजिक अगर बहुत स्टूप करके चल रहे हैं, अगर बात करने में भी अगर एक तरीके का कहीं ना कहीं कमी है तो उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड ओके, दैट कम्स अंडर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। द सेकंड है कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। किस तरीके की distinctive culture. We are a secular nation and we know that we live under different, we are born and brought up under different cultural backgrounds. So कहीं जैसे महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है, साउथ इंडियन है, तो कल्चर की वजह से भी हमारे कुछ थॉट प्रोसेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी हद तक उसको जिम्मेदार माना जाता है। सो यस, इट डेफिनेटली वर्क्स। अ बॉडी ऑफ स्टोर्ड नॉलेज, हमको बताया जाता है कि ये चीजें करने से ये चीजें होंगी। एक व्हेन वी आर बोर्न वी आर लाइक एन एम्प्टी वेसल, है ना, खाली मटका। जब धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, हमारा कल्चर हमको हमारे जो मटके में भरा जाता है वो हमारा नॉलेज है, और इस नॉलेज के बेसिस पे फिर हमारी पर्सनालिटी बनती है। अगर कोई simple example I'll give you, in Maharashtrian culture, if you don't wear Mangal Sutra, it is not considered, if you are married and you are not wearing Mangal Sutra, so it is not considered as an auspicious. So you have to wear a Mangal Sutra if you are married in Maharashtrian culture. But then sometimes people don't do that, and when people don't do that, we say that that lady is not good, that lady is not correct. बट क्योंकि ये कल्चरली हमारे दिमाग में, हमारे पर्सनालिटी में ये चीज बताई गई है तो हम वही चीज लेके आगे चलते हैं। थिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सपेक्टिव, ये हमको सोचने की जरूरत है। कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, जैसे मैंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग हो जाता है कि अगर ऐसा करेंगे, अगर काली बिंदी लगाएंगे तो गलत है, रेड बिंदी लगानी चाहिए। I mean, these can be
everything, most of the things can be, of course, their personal choices, but then we are groomed in these way of thinking, feeling attitudes, goals, ideas, and system. इवन द डॉक्टर्स, फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, वो बोलेंगे कि हमारे फैमिली में डॉक्टर्स ही बने हैं लोग, तो आपने भी आगे जाके डॉक्टर ही बनना है। तो एक फैमिली का गोल होता है, फैमिली के आइडियल्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। तो एक फैमिली होती है, आप समाज बोलते हैं उसको। फैमिली से शुरुआत होता है, समाज तक जाता है, फिर आगे स्टेट लेवल पे जाता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। जितना आप उस चीज को बढ़ाओगे, उतना आप में ब्रॉडर सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव आएगा। जितना छोटा 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 आप जानोगे, of course I am not against any kind of culture as such, but when it comes to understand different perspectives, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने when you are actually treasuring your own culture, at the same time you should be broad minded as well. So you can have a balance of both the things. You can be modern in the sense of broadening your mind to progress and growth. At the same time, you are treasuring and looking after your customs and traditions. आप दोनों चीजें अच्छे से कर सकते हो। थर्ड इज फैमिली इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी। पेरेंटल एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, हमारे घर में ये चीजें नहीं होती थी। थिंग्स आर चेंजिंग, चेंज इज इनएविटेबल, आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो इसलिए आपको चेंज एक्सेप्ट करना है। पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है कि इट इज इन आवर फैमिली, दिस विल नॉट चेंज, बट समटाइम्स you have to. Family environment also includes in this particular this thing, we have certain set of rules in our family, so it will abide by that only. पर कभी ऐसा हो कि हमारे घर में 7 बजे, शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, बट आज का जमाना ऐसा नहीं है, आपको काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू change the family environment in order to achieve your goals. Personality of parents भी आप में आ जाता है। If a mother is strong, a father is strong, stubborn, कोई भी अच्छी क्वालिटी हो या बुरी बुरी चीज हो, दोनों पर्सनालिटीज अगर आप अपने पेरेंट्स के ले लेते हो, बिकॉज जो बच्चे छोटे होते हैं जब वो ऑब्जर्व करते हैं वो वही अडॉप्ट करते हैं। सो जो वो देखेंगे, अगर अच्छी आदतें देखेंगे तो उनको अडॉप्ट करेंगे, बुरी देखेंगे तो बुरी अडॉप्ट करेंगे। सो ये सारी आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पेरेंट्स से आई है। अगर नुकसानदायक है, मैं बुरी तो नहीं कहूंगी, बट अगर नुकसानदायक है तो आप वो नहीं लीजिए, अगर अच्छी है तो आप वो लीजिए। यू कैन सिलेक्ट on your own. You are different and this is a good thing. Everyone is different. So what I mean to say is you can understand, कोई भी एक पर्सन सेम नहीं है। आप भले ही आपके पेरेंट्स जैसे होंगे पर आप आपके पेरेंट्स नहीं हो, इसका मतलब यू आर डिफरेंट, और वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो आप आपकी पर्सनालिटी को एक अलग जगह रख के देखिए, इंडिविजुअली सोच के देखिए कि आप खुद एक अलग किस तरीके की पर्सनालिटी हो और किस तरीके की पर्सनालिटी आप बनना चाहते हो आगे। Who you are, who are you? Sorry. How to find your personality type? A small tip I would like to give you at the end. You can make this. You can make this kind of a these kinds of a table where you can put your strengths, weaknesses, opportunities and threats. उसको SWOT एनालिसिस बोलते हैं। जब ये आप 4 चीजों करोगे, you can take your time, sit down, think about it. स्ट्रेंथ्स में आपको आपके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, वीकनेसेस में आपको आपके नेगेटिव ट्रेट्स लिखने हैं, अपॉर्चुनिटीज में आपको ये लिखना है कि आपको ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली है जो आपके ग्रोथ के लिए और प्रोग्रेस के लिए अच्छी है, और ऐसी कौन सी चीजें चैलेंजेस है या फिर थ्रेट्स है आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, फिर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा। सो यू कैन क्रॉस दीज थिंग्स, you can use your strength to overcome your challenges। ठीक है, आप क्या करो, क्रॉस करो,
आपके स्ट्रेंथ को लेके आप आपके चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं, और आपके पास जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है, आपके अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आप आपके वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो ये क्रॉस कनेक्शन जब आपका, मैं आपको कहूंगी कि आप इस तरीके का आप ये क्रॉस कनेक्शन यूज कीजिए, और जितने भी आपके वीकनेसेस और चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, ये आपके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के साथ आप इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी बनाइए कि हमेशा आप सक्सेसफुल रहे आपकी लाइफ में। पर्सनालिटी इज एवरी इंडिविजुअल सिग्नेचर ट्रेट. There will never be anyone like you. Therefore, hold on to what makes you so special as a person, a character, and a human being. Thank you so much, the organizers, once again for giving me this opportunity and sharing my little knowledge that I have with you all, august audience. Over to you, ma'am. I have finished my presentation. Thank you. You are mute. थैंक यू मैम। आज के हमारा स्टूडेंट काउंसिल का इस सेशन का ये पहला प्रोग्राम था, नो योर पर्सनालिटी। इसके ऊपर गाइडेंस देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे मैडम थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से पर्सनालिटी के बारे में बताया कि हमारा व्यक्तित्व क्या है और हमारे पर्सनालिटी कैसे बनती है। पीपीटी के माध्यम से मैडम ने ABCD ये 4 प्रकार की विभिन्न पर्सनालिटीज बताई, जिसमें वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कैसी है। मैडम ने साथ में अपने आप को हमें चेंज करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं ये भी बताया, और किस तरीके से हम मेंटल और फिजिकल अपने वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही मैडम ने स्वेट एनालिसिस बताया कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे पहचानें, किस प्रकार से कि हम कौन सा टाइप है और हम कैसे अपने आप को चेंज करके बेटर कर सकते हैं। मैम ने साथ ही बहुत अच्छे ढंग से हमें ये बताया कि किस प्रकार से हमें प्लानिंग करके हम गोल को अचीव कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग हम कभी भी अपने किसी भी छोटा सा काम हो या बड़ा, कोई भी गोल को यदि अचीव करना है तो प्लानिंग के साथ करने पे हम हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ ही पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में या हमारी जो पर्सनालिटी बनती है उसमें कल्चर का क्या रोल है, कल्चर कैसे डिटरमाइन करती है हमारी पर्सनालिटी को, वो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर उर्मिला डब्बे मैडम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये कार्यक्रम लेने के लिए इजाज़त दी। डॉक्टर माधवी मोहरिल मैडम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन लाए और हमारे स्टूडेंट के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लिया। स्टूडेंट काउंसिल की तन्मयी फरकाड़े और नुपुर गजभिये का थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम लिया, थैंक यू। और लास्ट में सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू श्रद्धा मैम।